اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق بیرون ممالک ہیں یا اس ضلع کے اندر موجود ہیں، دوستو آپ کی خدمت میں ایڈمرالہ تحصیل ایڈمرالہ کا ایک بڑا مشہور قصبہ ممار ملکہ، وہاں سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے ساتھ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں انمول گروپ سیالکوٹ کے سربراہ استاد صلاح الدین شہریہ اور اسی طرح استاد ملک رات اوان، ملک عامر اوان، اور اسی طرح ہماری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک شاکر اوان ہماری محفل میں موجود ہیں۔ تو دوستو میں اس وقت جس چھت کا منظر آپ میری اسکرین پہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارا پردیسی بھائی اسی قصبے سے تعلق، اور میں یہ کوئی قصیدہ گوئی والی بات نہیں کروں گا کہ اپنے گروپ کے حوالے سے اگر ملک حسن کی بات کی جائے تو باہر بیٹھے بھی وہ اپنے گروپ کے متعلق متحرک اور اس میں خلوص کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دوستو گزشتہ وزٹ پہ جب میں ان کی چھت پہ آئی رہا، آپ کو تھوڑا سا اس کا انشاءاللہ جس وقت ہم آپ کو چھت کا وزٹ کروائیں گے اس کی باقیات تھوڑی سی دکھائے گا، تو وہاں کھڑے تھے تو ملک حسن ہماری محفل میں موجود تھا، تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ لالا جی وہ سامنے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں ڈیرا بنا کے اپنی نئی چھت بناؤں گا۔ انہوں نے یہاں اپنی نئی چھت تعمیر کی، 4 ماہ کے عرصہ ہی ہوا ہے انہیں، اور ان کا یہ اسوج 2022 کا سیالکوٹ اور اپنے علاقائی ٹورنامنٹوں کے حوالے سے پہلا سیزن تھا۔ میں سب سے پہلے ان کی استاد کی موجودگی میں، ان کی بھائیوں کی موجودگی میں انہیں نئے چھت کی، نئے ڈیرے کی اس تمنا اور اس خواہش کے ساتھ مبارکباد دینے جا رہا ہوں کہ وہ بحیثیت انسان، بحیثیت کھلاڑی، بحیثیت اسپورٹس مین یہاں سے اپنے شوق کی آبیاری کرے۔ دبئی بھی مقیم ہے، ظاہر ہے آج ہماری محفل میں نہیں ہے، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے بڑی کبھی امید ہے۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں آپ کا یہ شوق بتدریج ڈے بائی ڈے پچھلے سالوں سے، پچھلی دہائیوں سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں اس شوق میں آپ نے دیکھا اس میں بڑھوتیاں ہوئی ہیں، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ کے بعد واحد ایک ایسا کھیل ہے کہ جس پہ اب زیادہ لوگ توجہ بھی دے رہے ہیں، زیادہ ٹورنامنٹس بھی ہو رہے ہیں، دن بدن ان میں بڑھوتی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر میں سیالکوٹ کی بات کروں، سیالکوٹ کی اگر بات کی جائے، کبوتر سارے ہی اچھے ہیں دوستو، ہمیں اس کنٹروورسی میں سیالکوٹ کا ایک اپنا مقام ہے، لاہور کا اپنا مقام ہے، قصور کا اپنا مقام ہے، فیصل آباد کا اپنا مقام ہے۔ اینی آؤ جہاں آپ لاہور کو یونیورسٹی آف کبوتر پروری کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر سیالکوٹ کے اعزاز میں بھی ایسے ایسے کھلاڑیوں نے یہاں سے جنم لیا، ایسے ایسے کبوتر یہاں سے بنے کہ انہوں نے کبوتر پروری کے حوالے سے سیالکوٹ کو پوری دنیا میں روح شناس کرایا۔ میں سب سے پہلے ملک برادران کا، جن میں استاد ملک رات اوان ہے، ملک ظہیر اوان ہے، ملک حسن ان کا اس قصبے سے ہے، دبئی میں ہے، اسی طرح انمول گروپ کے سربراہ صلاح الدین شہریہ اور ان کے تمام گروپ کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو تھوڑی دیر پہلے جس وقت میں ممار ملکہ کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ایک گاؤں آتا ہے ہمو گکھڑ، تو میری ایک عادت رہی ہے کہ ان ملکوں نے بھی میرے ساتھ بہت پیار کیا، اللہ انہیں جزا دے جہاں جہاں کہیں بھی ہیں۔ تو میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے ایک چھوٹی سی وہاں بات کی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ پیار کیا ہے، اور الحمدللہ جن لوگوں نے پیار کیا ہے یہ قیامت تک میرا یہ سرمایہ ہے، اور یہی میری کمائی بھی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ ملک صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟
शुक्र है अल्लाह ताला जी। पढ़ लो, मेरी आवाज आ रही जी बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है यार। दोस्तों को कोई दोस्त कमेंट करें ना ना, ठीक है रखो, ठीक बड़ी आवाज है, बड़ी खैर कर रहा है। कोई दोस्त मुझे हीरा को मैसेज करें ना ना, खैर है पकड़ देने, मैसेज करें कि आपको आवाज सही आ रही है। जी हाँ ना का हीरा जरा उसके लिए पढ़ना आसान हो। आया कोई मैसेज? मलक साहब क्या हाल है? जी अल्लाह आप का ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक शुक्र खैरियत अल्लाह से हैं? का। मलक साहब आपसे एक बड़ा एक अरसा एक बड़ा दरीना तलक आपके ग्रुप के हवाले से रहा है। मलक हसन ने भी माशाल्लाह नई छत बनाई है, उसका पहला सीजन था। तो कैसा रहा इस दफा आपका सीजन? मैं एहसान जट का राम वाले का मैं देख रहा हूँ, इस छत से देख रहा हूँ, कैसा शौक रहा आपके ग्रुप का? सीजन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हसन दा, क्योंकि नवीं छत सी ते 4 महीने की तैयारी सी ओदी, और मौसम भी प्रवास दे पहले बहुत डेंजरस ने। अस्सू दे विच काफ़ी नुकसान होया दोस्त अहबाब, काफ़ी नुकसान होया दोस्तां दा। जी जी ते उन्हां दे विच ज़ाहिर है फिर जिहड़ी नवीं छत सी, इहदा नुकसान थोड़ा जिहा ज़्यादा होना सी। कबूतर भी कुछ बच्चे सन, कुछ नਵੇਂ कबूतर सन, ਉਹਦੇ बावजूद बहुत अच्छा कारकर्दगी कीती है। काका काके ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਹਸਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 15 ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਉਡਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਖੁਦ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋ ਜੇਠ ਵਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਹਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਣਾ ਤੇ ਛੁਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਜ਼ਗਨ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਲਕ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ, ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗਰਾ ਨਮਾਈ ਦੇ ਤਾਮੀਲੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। क्या बेहतर नहीं मलक साहब के एड़े आमने सामने जितने इतने बड़े मामलात ने इन्हों टूरनामेंटा ही डाइवर्ट किया जाए, अच्छे टूरनामेंट खेले जान? अपनी राय दो, अपनी राय देनी है। बहुत अच्छी गल है लाला जी, और मेरे जहन के मुताबिक, नाकस इलम के मुताबिक कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਬੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈਡੇਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ, 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗੂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਮਹਦੂਦ ਪੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਦੂਦ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 50,000 ਐਂਡ ਸੀ, 50,000 ਐਵਰੇਜ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਹਟਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਲਸਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾ ਆਪਣਾ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੌਕ ਖੇਡੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਕ ਖੇਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ कबूतर मालक दा तुसी हक नहीं खाओगे। तो दोस्तों मलक साहब की बातें आपने सुनी, उसे रखो। मलक रात की बातें आपने दोस्तों सुनी। मैं फिर भी ये समझता हूँ, मैं इस बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा कि बेहतर यही है कि आज मैंने उससे नोमी जोड़ा है, भाई है मेरा छोटा बहू नासर, तो वहां इस मौजू को मैंने इसलिए यहाँ ये गुफ्तगू किया है कि आज से कुछ चंद अरसा पहले मैंने एक स्टेटस दिया था कि क्या आज अगर अच्छे टूर्नामेंट, अच्छे मामलात हो रहे हैं तो आपको इस तरफ आना चाहिए। तो मैंने राय जानने के लिए वो स्टेटस दिया था लोगों का कि लोगों की क्या, मोस्टली लोगों की राय ये थी, उसमें लोगों का अपना भी इजहार था, उन्होंने किया है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूं कि मेरा जो मुशाहिदा है, मैंने आपको जिन जिन एंगलों से देखा है, टूर्नामेंट आज उन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जाहिर है वहां भी तो आपने एक हिसाब अपना कमाई का देना है, तो टूर्नामेंट आप 3-4 अच्छे टूर्नामेंट खेल लें। तो नौमी भाई ने वो मिसाल उसने कहा, लाला जी अगर आमने सामने कोई एक आदमी 2-4 मुकाबले खेलेगा, अगर वो पूरी गुजरात में टूर्नामेंटों में जीत जाता है, इससे बड़ा एजाज और क्या है। और यही तफरी है दोस्तों। अदरवाइज मैं ये छोटा मुंह है, मैं बड़ी बात कर रहा हूं। तफरी जो है ना, तफरी, और फिर उन मामलात में फिर ये आप उसको तफरी ना कहें। ये इंशाल्लाह इस मौजू पे कभी गुफ्तगू भी होगी आप दोस्तों से। इसी तरह दोस्तों मेरे साथ उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया काफी अरसा से वो सियालकोट शौक में भी इन्वॉल्व हैं। मैं इनकी राय भी जानना चाहूंगा, क्यों कि मुझसे ज्यादा तजर्बा इन लोगों का है, क्योंकि ये इस फील्ड में मौजूद हैं। मैं तो इसे देख रहा हूं ना, मैंने तो इसे देखना है कि ये क्या करते हैं, किस तरह कबूतर उड़ाते हैं, कितने घंटे बनाए हैं, हमने तो यही देखना है ना। तो ये लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, इन्हें ज्यादा पता है कि कहां इस शौक की रूह जो है वो जख्मी हो रही है, ये इन्हें ज्यादा पता है। वालेकुम सलाम। शहरिया भाई ठीक हो? बहुत अल्लाह का ठीक ने करम, सब माशाअल्लाह सब तरह की कहना चाहते शहरिया भाई, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਮੀਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋग एक दूसरे ਨੂੰ ਮਿਲੋ, बैठो, ठीक है, एक दूसरे को जाओ आओ, खाओ पियो। की कहना चाहो? पढ़ लो माइक।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਲਕ ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਵਡਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਓ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸਗਨ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੋਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾਈ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आलिया असवज 2022 का सीजन अपने वो इख्तिताम हो चुका है टूर्नामेंट भी उनका इख्तिताम हो चुका है मलक हसन ने अपनी इस छत से खलीफा भी हैं वो सारी खलीफा मलक हसन जिनका तल्लक अपना इस ममार मलका से है उन्होंने पहले सीज़न में 4 माह की कलील मुद्दत में उन्होंने यहाँ से अपना शौक़ शुरू किया सरपरस्ती उन्हें उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया की थी और उनके साथ उनके मुखलिस दोस्त मलक रात अवान हैं और बहुत सारे दोस्त हमारी महफिल में यहाँ मौजूद हैं तो आइए कुछ सीज़न 2022 अनमोल ग्रुप की कुछ छतों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया मैं भी कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हालांकि मैं इतना अटैच नहीं रह रहा इस दफ़ा मगर ये है कि दूसरे तीसरे दिन बाद जिस वक्त मैं कोई न्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो इस दफ़ा उन्होंने उनकी चंद छतों ने जिस तरह के एहसान जट हैं और वहाँ एक कस्बा है वहाँ से हसन की छत से और भी छतों से इनके अच्छे रिजल्ट आए होंगे तो मैं चाहूँगा कि तफसीलन मलक रात साहब इस पे हमें आगाही फराम करें जी लाला जी बहुत अच्छा शौक होया 2022 असुच अनमोल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त मलक शमशाद साहब सऊदी अरब ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ 2022 ਚ ihsan ਜੱਟ ਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 15 ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸਨ ਇਲਾਕਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ihsan ਜੱਟ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੀਤਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸੈਫ ਜੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੈਫ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋਕੀ ਹੈ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਥਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
तो दोस्तों बातें तो मैं कहता हूँ ये बड़ा वसी सब्जेक्ट है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर सब्जेक्ट मेरा है ये। मैंने इसे सब्जेक्ट के तौर पे आज से 10, 12, 15 साल गुजरात से अपना सफ़र शुरू किया। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि उन खिलाड़ियों का आपको जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो सिपाही हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, आपको जंग जीता, जंग ही है ना, मैं आज जंग ही है। आज मैं यहाँ छोटी सी आपको मिसाल दूं, मैं अक्सर एक बात करता हूँ मलक साहब जी हार और जीत 2 लफ्ज है ना। जी जी जी। अगर आपने लिख दिया मैंने शिकस्त 2 पाश कर दिया, बात तो एक ही है ना, एक ही। मगर ये है कि उसमें जरा था, उस फिक्रे में थोड़ा लहजे में फर्क आ जाता है। बिल्कुल। आप यकीन करें दोस्तों, मेरा अपना जिला है, बड़ा जरखेज जिला है, जिला गुजरात। आपने कुछ अर्सा पहले मेरी आईडी पे, और बड़ा मुझे वो इलिटरेसी लगी थी, मैं आपको ट्रूली बात बताता हूं, मगर ये डिमांड थी मेरी तरफ से। हरगिज़ बात, ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस वक्त मुझे फोन करके न्यूज़ वगैरह लिखवाते हैं कि चैलेंज, तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूं यार ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता, ये लफ्ज। दूसरा, आप एक गली में रह रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल पे उसको दावत शौक दे रहे हैं, आप मिल बैठ के ये सारे मामला कर रहे हैं, नहीं आओ। तो मुझे कहने लगे लाला जी आपने मेरी हरीफ की छाती के ऊपर शिकस्त का लफ्ज लिखना है, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? आपने कबूतर उड़ाए, अच्छे उड़े, आप ये लिखो भाई। मैंने उसको मुकाबले, मैंने उससे जीत लिया, चारों शाने चित कर दिया, गिरा दिया, गर्दन उड़ा दी, टांगे काट दी। ये खराबियां हैं, यही खराबियां हैं इस खेल में। जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जब से मैं उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया का शागिर्द हुआ हूं, काफ़ी मुकाबले हमने खेले हैं। पहले मेरी पहचान जो है ना वो अपने कस्बे में थी, अपने इलाके में थी। उस्ताद लोगों ने बाहर मुकाबले मेरे तय किए, मैं उनको नहीं था जानता। जिस बंदे के साथ हमारा मुकाबला 1 to 1 मुकाबला हुआ ना, पहले उनके साथ कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन मुकाबले के बाद हमारा तल्लकात ऐसे बढ़े हैं कि जैसे हम भाई होते हैं। वो मुकाबले हमारी पहचान बने, उन मुकाबलों से हमें अच्छे दोस्त भी मिले हैं, अच्छे भाई मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने हरीफ को इज्जत दोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक इज्जत होगी। अगर आप ऐसे अल्फाज लिखते हो कि मैंने उसको चित कर दिया, मैंने उसके सीने पे शिकस्त लिख दी, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने हरीफ को गाली दे रहे हो, और जब उसको गाली दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ शो कौन करेगा? मतलब उसका रिएक्शन भी होगा ना। हाँ, वो रिएक्शन में आएगी वो चीज। अच्छा शो करो और अच्छा इहलाक पैदा करो, ताकि लोग आपको पसंद करें कि यार मैंने उस बंदे के साथ शो करना है, वो बहुत अच्छा शो करता है। ना कि वो बंदे बोलेंगे यार अगर इससे हार गए तो ये पता नहीं क्या क्या लिखेगा, क्या क्या बोलेगा। इससे बेहतर है कि इससे शो की मत किया जाए। तो सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, उस्ताद आशिक हुसैन साहब से भी जब भी मुलाकात होती है तो वो ये एक ही बात करते हैं कि यार हमारी कबूतरबाजी में ना सबसे बड़ा दोस्त जो हमारा है ना, वो हमारा हरीफ है, जो हमसे मुकाबले भी करता है, हमारा शौक भी करवाता है। ये बहुत अच्छी बात है उनकी, और हमने वो दिल पे लिखी हुई है कि हरीफ के साथ ऐसे रहो जैसे अपने सगे भाई के साथ रहते हो, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहते हो, ताकि वो शौक करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आपसे कि यार कल को पता नहीं ये क्या अल्फाज बोलेंगे हमारे लिए। दूसरी बात लाला जी, मैं वो भूल गया था, आपने कहा कि टूर्नामेंटों में अगर टूर्नामेंटों को तरजीह दी जाए तो वो बेस्ट है। और मैं टूर्नामेंटों की ही बात करता हूं कि इस दफ़ा हमारी इस छात्र ने, मलक हसन की छात्र ने, खलीफा मलक हसन अमान, तकरीबन 20 टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया। पंजाब के, सियालकोट के इलाकाई टूर्नामेंट, और उनके बाद जो 1 to 1 के टूर्नामेंट आते हैं जिनको हम प्यारा बोलते हैं, वो बेशुमार थे। अगर बंदा अभी शो करना चाहे ना 1 to 1 मुकाबले से हट गए तो उसका बेहतरीन शौक होता है, क्योंकि 20 टूर्नामेंट 20 इंसानों से बंदा, यानी अपने हरीफों से 20 से बंदा 1 to 1 मुकाबले नहीं खेलता, लेकिन 20 टूर्नामेंट जिस बंदे को मिल जाने हैं उसने मुकाबले क्या करने हैं। मैं ज़िमनन ना मलक साहब, आपने बहुत अच्छी, बड़ी सैर असल गुफ्तगू हो रही है दोस्तों, बड़ी तामीरी गुफ्तगू है।
मलिक साहब मैं ज़िम्नन ना उस दिन मैंने सनी चाटा, लोग मुझे सुन रहे हैं जापान वाला, यही मौजूद था वहां, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सनी तुम कबूतर पैसों के लिए उड़ाते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे इन पैसों से कबूतर उड़ा के घर चलाने हैं? उसने कहा लाला जी नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई इशू ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। तो मैं समझता हूँ मलिक साहब, मैं ना आज रास्ते में सोच रहा था कि इस मौजू पे इंशाल्लाह शहर सियालकोट का एक बहुत बड़ा मकाम है, जी बिल्कुल। यहाँ से बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं कबूतर परवी के कि उन्होंने बड़े बड़े अच्छे नफूस छोड़े हैं, मगर ये है कि ऐसी चीजें अब हो रही हैं कि उनको अब खत्म होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। ये देखें हरीफ, जिस वक्त आप टूर्नामेंटों में भी जाते हैं तो ज़ाहिर है कोई एक पिंडी भटिया का है, कोई सरगोदे का है, ज़ाहिर है उनका आप रिजल्ट भी पढ़ते हैं, जिस वक्त पोजीशनों में लोग आते हैं, आप तकरीबात में जाते हैं, मेल मुलाकात होती है। दूसरा मलिक साहब बात है ही यही, यहाँ लोग इसे प्यार मोहब्बत वाला खेल कहते हैं ना, तो मैं अक्सर ना मिलनसारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मलिक शमशाद साहब, उसकी वजह आप यकीन करें, जिस वक्त मुझे आप सऊदिया का नाम आया, अराद अल खज़ाई है वहाँ मक्का से, तो मैं जिस दिन हजर अस्वद के पास सामने खड़ा था ना, अकेले मैं खड़ा था, हजर अस्वद को देख रहा था कि, और मैं रो रहा था साथ, तो शाम को ना मैंने कहा ये कबूतर तुम्हारी वजह तस्मिया बना है, ये कबूतर तुम्हारी इसकी वजह तस्मिया बना है। राद अल खज़ाई ने कबूतर ना रखे होते, लाला माजिद का ये शोभा ना होता, वो मुझे किस तरह अकेले जाके खड़ा करता अजय असद के सामने। तो ये मिलनसारी वाला सिलसिला है। अल्लाह आपके जज्बों को और तकवीयत दे, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह आप दोस्त एक दूसरे के साथ खलूस करते हैं। मलिक साहब, एक बात है कि मेरे बड़ों ने मुझे ये बात पढ़ाई भी है, समझाई भी है कि जिन दोस्तियों की बुनियादों में लालच होगी वो प्रोलांग नहीं हुआ करती। बेशक। प्रोलांग से मुराद वो लंबी नहीं होती, नहीं चलती। तो मेरी दुआ है कि आप भाई, मतलब मैं बड़े अच्छे तरीके से मैं आप दोस्तों को देख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में मुखलस दोस्त जो है ना, ये अल्लाह की एक बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है कि जो आपका सलाहकार अच्छा हो, आपकी इज्जत का भाईवाल हो, आपके गम दुख दर्द में शरीक आने वाला हो। यही चीजें इस शौक की तशरीह भी है। तो आइए दोस्तों, ईरा आपको तारफ करवाओ जी, बनाई लिया मोबाइल लिया होना, पिछे मलक आन होनी होने फोन आ जानी, छत नहीं बनाई। मलक नदीम साहब ने, मलक नदीम साहब जी लाला जी सां गल कीती है कि अच्छे दोस्त ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖਲਸ ਸਾਥੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਖਲੋਗੇ ਬੇਟੇ, ਖਲੋਗੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਤਾਰਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ, ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਆਫਾਂ ਗੰਗ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਫਾਂ ਗੰਗ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬਕਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲਾਲੇ ਰਾਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अरे शौक सियालकोट की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। मैं आम आपको इंशाल्लाह उधर पता करो उधर से नहीं तैयारी हुई है, खैर हो रही है ना, हले हो रही है, खैर है कोई गल नहीं। तुसी इन्हां नूं आखो सुलेमान किथे? सुलेमान और आए तेरे नाल बाहर ने, तू ऐसे पीछे साडे खलोंदा ही नहीं यार। इधर आ, इत्थे आ, इत्थे आ, लाले होने नाल हो। अच्छा हाथ पड़ा मैनू। तो दोस्तों ये आप पीछे इस बच्चे को देख रहे हैं, मलक बरादरी से तलक अजीज हैं मलक हसन के। और मैं अक्सर ना एक कुछ लफ्ज होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और वो फॉरएवर रहते हैं। मैं अक्सर ना बिहाइंड द स्क्रीन कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं गुमनाम सिपाही का, मलक साहब को याद होगा ये लफ्ज, ये वो गुमनाम सिपाही हैं कि मलक हसन वो ठंडी मशीन में बैठे जाके खुश होता है जो देखता है ना कबूतर 4 बजे बैठा है, मगर उसके पीछे तवानाइयाँ, जज्बा, मेहनत वो इन लोगों की होती है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अगेन उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया का, अनमोल ग्रुप के तमाम मेम्बरान का, मलक रात अवान का, शमशाद भाई का, इस तरह मलक साहब तशरीफ फरमा है, मलक हसन का, मलक ज़हीर का, कि उन्होंने मुझे प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी और मेरे साथ हमेशा वो शाना बशाना वो चले भी। आपने देखा कि आज मैंने एक रिक्वेस्ट उनके, ये मेरी रिक्वेस्ट थी उनके साथ कि ये मेरा इजहार है, अगर आपके प्लेटफॉर्म से ये बातें आगे चलें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और मेरी दोस्तों इसमें कोई लालच नहीं है, लालच मेरी क्या है, आप लड़ेंगे, हमारा क्या है, मीडिया का क्या है, मीडिया का तो काम ही आप देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल को आप देखें ना, उनका क्या काम है, एंकर ने 2 आदमी बिठाए होते हैं, उनका काम है लड़ाना, मिलाना नहीं। तो मिलाने वाली साफत जो है उसकी क्रिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपना इजहार करता रहूँगा, भले से कोई अच्छा समझे या ना समझे, मगर मैंने कल गुजरात में भी अपनी पुरानी साफ्ती हवाले से एक बात की थी। मैं हमेशा अगर अच्छी बात करता हूँ तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ कि मैंने उससे रज़ा लेनी है। अगर मेरे किसी अमल से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे किरदार से वो अच्छा हो गया तो हो सकता है रोज़े क़यामत मुझ गुनाहगार की भी अल्लाह पाक मेरा भी बाजू पकड़ लें, मैं भी शायद उस गड़े से बच जाऊं जिसके लिए हम ये मामलात सारे। आज दोस्तों ग्लोबल हालात हमारे जो हैं, हमें अपने मामलात पे गौर करने की, ये भी मेरी आप दोस्तों से इस्तदा है। और अक्सर मैं एक बात करता हूँ दोस्तों, आपका ये शौक आप इसको इतना बुरा ना समझें, आप यकीन करें ये फकीरों वाला, अल्लाह से मिलाने वाला शौक है। अगर आप इसका थोड़ा सा डीपली इसकी स्टडी करें, आप मुझे बताएं, तहज्जुद पढ़ने वाला आदमी रात को 2 बजे उठता है ना, आप छत पे 2 बजे खड़े होते हैं। अगर मैं समझता हूँ आप आते हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो आप 5 मिनट अल्लाह के लिए भी निकालें। ये जान उसकी दी हुई नेमत है, उसकी शुक्रगुजारी का बेहतरीन जरिया ये है, उससे डरें, उसके अहकामात की पाबंदी करते हुए, उन अवामर में रहते हुए अपनी तफरीयात को भी हम आगे लेके जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि उस्ताद हाजी नसीम बूटी मरहूम, उनकी वफात के बाद ये सरजमीन सियालकोट का मेरा पहला विजिट है। मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने सियालकोट कमेटी में रहते हुए शहर सियालकोट के शौक को आगे ले जाने में उस शख्स का एक बड़ा किरदार था। उम्र के इस हिस्से में भी आपने देखा
कि वो डिवोटेड रहे आपके शौक़ के साथ, और एक बड़े खलूस भरे दोस्त थे इन सियालकोट कमेटी के लोगों के। मैं खसूसी तौर पर तमाम अहले शौक़ सियालकोट से हज़ार तज़ियत भी करता हूँ, हमदर्दी का इज़हार भी कर रहा हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो वो बरज़खी ज़िंदगी है उस पर अपना रहम भी फरमाएँ, दरगुजर भी फरमाएँ, उनकी बख्शिश भी फरमाएँ, और उनके दोस्त अहबाब जो हैं उन्हें याद रखने की सफ़ा आपने देखा कि एक टूर्नामेंट का नाम जो है वो रखा गया था उसके नाम। मैं एक और रिक्वेस्ट भी एक अरसा से इन लोगों को कर रहा हूँ। मैं एक और रिक्वेस्ट भी, मुझे वो बात याद आ गई। पहले तो मैं शेर सुनाऊंगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि शहर सियालकोट से हकीमुल उम्मत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको एक मेमोरियल फंक्शन जो है, एक टूर्नामेंट, मैंने बरमलाट इनकी कमेटी के एक प्रोग्राम में भी इस बात का इज़हार किया था। मैं अनमोल ग्रुप से ये गुजारिश करूंगा कि अगला अगर आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो ऊपर इलामा की तस्वीर होनी चाहिए, उनकी यादें ताज़ा होनी चाहिए, ताकि कबूतर परवर भी ये पूछ सकें आज आपसे यार ये कौन था, इसने हमारे लिए क्या किया, क्यों आपने इसकी फ़ोटो यहाँ सजाई है। ये उनका हक बनता है। इकबाल भाई, ये ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਅਬਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो दोस्तों आइए, बड़ा खूबसूरत माहौल है, और मैं समझता हूँ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बैरूनी मनाजर दिखाए। बड़ा खूबसूरत मरले वकू है छत का, और खुसूसी तौर पे इन दिनों में आप देखते हैं धान की फसल होती है, गन्ना होता है। तो मैं भी जब शहरों से निकलते हैं वो बड़ी कंजस्टेड लाइफ होती है शहरों की, धुआं, गाड़ियों का शोर, गंद। यहाँ बड़ा एक अच्छा माहौल है। हीरा आपको ऊपर जाके ना हीरे होते हो, पूरा आपको पहले छत का विजिट करवाएगा, उसके बाद मैं मलक साहब से, सलाउद्दीन शाहिया से ये गुजारिश करूंगा कि उसके जोड़ने वाले परिंदे थे 5, 6, 7 वो दिखाए जाएं। चलें रे कल काट लें। और जी तुहानू उत्तों जाके मलक साहब ने छत विखाने जी। जी मलक साहब आते जी छत है जी। हाँ जी गिरदनवाद जी मनाजर तुहानू दिखा रहे हैं छत दे जी। मुंजी की फसल लगी है, कोई बंदे कटते न पे, कदे कई करे करे खलोती है, कई फंड चुके ने जी मुंजी नू जी। ओ सामने ड्रम पे है जी। है जी आ मुंजी फंडी है जी ना होनी। हाँ जी ड्रम नाल पई है मुंजी जी। अजान पुत्र की हाल है? ठीक है। मेरा भतरीआ जी साउथ अफ्रीका तो जी, और मैनू देख रहा जी। जैन नजर भट्ट जी मेरा भतीजा जी, ये साउथ अफ्रीका देख रहा जी मैनू जी। अजहर हुसैन भट्ट जी कुवैत तो देख रहे हैं जी सानू जी। छत दे गिरदो नवा मनाजर तुहानू दिखा रहे हैं जी। यह मुंजी है जी, यह पक्की है जी, यह जी है। और 2 दिनों हो सकता 3 दिनों कटाइए दी हो जाए जी। कोई अपना घर अगर कच्ची है मुंजी जी है, मुंजी कच्ची है।
जी माशाल्लाह जी। जी देखो जी बोलदा कबूतर जी माशाल्लाह जी, क्या बात है, लड़दा है। पौड़ी ना टंगी लल्ला जी, दाना हाथ रख, तुसी जाओ दाना रखो हाथ थोड़ा जा। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरा हीरा भट्ट जी, एडमराला तू जी, बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। अब दोस्तों, आप इस परिंदे की मासूमियत का अंदाज़ा, इससे प्यार करने का अंदाज़ा आप ये लगा लें। इसको बचपन से एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई, आप यकीन करें मेरे आंसू निकल आए हैं। ये इतना हसीन परिंदा है। अब ये देखें, ये मेरे साथ भी मालूम। और दूसरी बात ये है कि इससे जितना प्यार किया गया है उतना ही ये प्यार आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपको वापस कर रहा है। ये देखें इसको, ओए बोलो अच्छा, ये असील कबूतर है, कोई टैडी टाइप लगता है मुझे ना, हल्का सा टैडी टैडी लगता है। ये देखें, ये बोल रहा है मेरे साथ, मानूस भी हो रहा है और दाना भी खा रहा है साथ साथ। ये एक बड़ी, आज मुझे एक बड़ी मुनफरिद यूनिक चीज़ जो है देखने को मिली। एक दफ़ा मलिक इकबाल हैं, मुझे याद आ गया, चक शहजार इस्लामाबाद से, उन्होंने बकायदा वो परिंदा उनका उड़ते भी थे। ये नहीं है कि वो मतलब उड़ते नहीं थे, उड़ते थे बकायदा। ट्रेनिंग इस तरह हाँ जी, तुहानू उन्होंने उड्डण वाले परिंदे दिखाने जी, मलिक साहब होरां दे चार पांच थोड़े करने हम जेह्ड़े अज मलिक साहब होरां दे कबूतर ने जेह्ड़े जी सीजन च उड्डे ने जी। मलिक हसन साहब जी, ये उन्होंने परिंदे ने जेह्ड़े सीजन च उड्डे ने जी। एक कप च पहली पोजीशन हासिल की है, दूसरे कपां च तीसरी, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं, अठवीं जी इंदियां पोजीशन हासिल की ने जी। अज मलिक हसन साहब होरां दे जी प्रवासी कबूतर ने जी, जेह्ड़े इस टूरनामेंट च उड्डे ने जी, कारकर्दगी दिखाई है जी। मतलब ऐसा कबूतर दीवार के पीछे, दीवार होनी चाहिए कबूतर के पीछे, सामने छाती बहुत पहला माशाल्लाह जी है वो कबूतर तो छाती दीवार देखो मलिक साहब, बैकग्राउंड आवे जी जी ठीक माशाल्लाह जी। सुपरमैन कबूतर का नाम रखा है मलिक हसन साहब ने। मलिक हसन साहब और आंदा सुपरमैन कबूतर जी माशाल्लाह जी। वो कबूतर है कि जिन्हें 5 दिनों जिन्हें ऐस छत दे
ਵਿਨਰ ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਕੁੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਖ ਬਹਾਵੇ ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। पंजे चेक करो। आज मलक हसन साहब ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 72 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਜ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 72 ਨੰਬਰ ਜੀ। 72 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾਰੇ ਮਲਕੇ। ਮਮਾਰੇ ਮਲਕੇ ਤੂੰ ਜੀ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾਬੜ ਜੀ। ਮਮਾਰੇ ਮਲਕੇ ਤੂੰ ਹਸਨ ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮਾਰੇ ਮਲਕਾ ਤੂੰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2023 ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 2000 ਰੋਕੇ ਸਨ ਜੀ 2023 ਦੀ ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰੋਕੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ? ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੇਠ 2023 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। छड़ दिन माशाल्लाह जी। जेठ 2023 के वास्ते जी तैयारी हो रही है। जेठ 2023 की
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਟੇਰਾ ਔਰ ਕਸੂਰੀ ਕਰਾਸ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕਸੂਰੀ लिखा जी इराजी मलक को बोले शाह जी शाह जोर का शौक करवाएं जी, करवाते ना जी। जी उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दे कबूतर ने जी। ਕਾਕਾ ਦੇ ਆ ਗਿਆ माशाअल्लाह जी, आखरा शुक्र है उस्ताद जी। ਸ਼ਾਹਦੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਸ਼ਾਹਦੌਰ ਲੈ माशाअल्लाह जी। ये केड़ा मतलब जी कबूतर है? ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ केड़ा है कबूतर? ਬਟੇਰਾ ਔਰ ਕਸੂਰੀ ਕਰਾਸ बटेरा और कसूरी जी उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दा जी बटेरा और कसूरी कबूतर है जी। अज हुण तुहानूं जी शाहजोर दा शौक कराने आ जी। जेठ 2023 की तैयारी वास्ते कबूतर तैयार हो रहे हैं जी। हाँ सामने ले आओ जी बाली ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हाँ हाँ जी। ये किहदे घर दा जी? ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब होरां दे घर दा भी कबूतर है जी। ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ ब्लैक कोबरा जी माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त जी ब्लैक कोबरा कबूतर है जी। ब्लैक कोबरा का तुहानूं शौक करा रहे हैं जी मतलब हसन साहब होरां छातू जी जिराबट बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है। माशाल्लाह जी ब्लैक कोबरा वाकई ब्लैक कोबरा है जी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ जी पंजियां का शौक करो जी। जी तुहानूं शाहजोर का शौक करा रहे हैं जी। हेलो जी भाजी शाहजोर आ गया जी, तुहानूं शाहजोर का शौक करा रहे हैं जी। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਜ਼ੀ ਝੁੱਡਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਉੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਮਲਕ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ
तो दोस्तों आपने मलक हसन अवान खलीफा मलक हसन अवान जिनका तल्लक हमारे मलका से है और ख़ुद वो दुबई में मुकीम है और उनका शुमार भी हमारे परदेसी भाइयों में होता है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि फासले अहमियत नहीं रखते, फासले अहमियत नहीं रखते। वो बेशक दूर बैठे हुए हैं मगर आज मैं समझता हूँ उनके इतने दोस्त अहबाब, उनके उस्ताद मोहतरम, उनके इतने प्यार करने वाले इस महफिल में मौजूद हैं, तो हम यही समझेंगे कि मलक हसन हम में मौजूद है। तो दोस्तों आज मेरा आने का जो मेन मकसद था यहाँ वो ये था कि अनमोल ग्रुप से ही तल्लक मलक ज़हीर अवान उनका साथ ही गांव है। उन्होंने भी आलिया असवज 2022 में कुछ शानदार कामयाबियां अपने नाम समेटी। तो आज उन्होंने अपने उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया अनमोल ग्रुप के बाकी अरकान उनके एजाज़ में आज उन्होंने एक दौराने का एहतमाम किया हुआ है। तो मैं फिर उस ख्वाहिश के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। आज मैंने कुछ अपनी माजूरात जो हैं उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया मलक रात अवान इनके सामने रखी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मेरी उन बातों को इंडोर्स करते हुए उन्होंने कहा लाला जी हम कोशिश भी करेंगे और अमली तौर पे इस हवाले से कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपका खेल इसमें अगर बेहतरियाँ पैदा होगी, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपका ये जो सफ़र है ये बड़ा लंबा सफ़र है, क़यामत तक का सफ़र है। तो सफ़र को खुशगवार गुजारने के लिए आपको उस सफ़र को वो लवाजमात देने होंगे, तब आपका सफ़र जो है वो खुशगवार गुजरेगा। मैं एक दफ़ा फिर उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, उस्ताद मलक रात अवान, मलक हसन अवान, मलक ज़हीर अवान और मेरे जितने भी अहले महफिल हैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए हम अब थोड़ी देर बाद मलक ज़हीर अवान जिन्होंने असवज 2022 में अनमोल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से टूर्नामेंटों में और बाकी मुकाबलों में उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया और आज उन्होंने अपने दोस्तों के हवाले से कोई खाने पीने का प्रोग्राम किया हुआ है। तो दोस्तों जाते जाते वो पुरानी बातें मुझे याद आती हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी ये हर आदमी, मेरा ये ईमान है कि हो सकता है कि मैं अगला सांस जो है ना ले सकूं आपके दरमियान, और ये भरपूर आपका ईमान होना चाहिए। मेरे जद्द अमजद हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का ये फरमान है कि मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है। ये छोटा सा कुलिया है आपके लिए। तो जाते जाते मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे मलका खलीफा मलक हसन ऑफ दुबई, उनकी छत से उनके उस्ताद मोहतरम, उनके ग्रुप के अरकान के हमरा उनका शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।